واسطے میں تیاری کی تھی، میں تیاری کی تھی، میرا سارا ہی لے گئے لٹ کے۔ پوری زندگی کی کمائی جو ان کو پینشن ملی تھی وہ ساری اس میں لگا دی، ابھی یہ پوری زندگی چاہ کے بھی یہ نہیں بنا سکتے۔ ہمارے جیسے جلا جا رہے، ہمارے گھر جلا جا رہے ہیں، ہمارے گھر ہمارے بچوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، کھیتوں میں بچیوں نے رات گزاری ہے، ہم سو نہیں پائے، ہم تو اتنے دکھ میں ہیں جس کا حساب نہیں۔ 16 اگست ہمارے لیے قیامت کا دن تھا۔ دو بیٹیوں کی شادی تھی، ریٹائرمنٹ کی ملنے والی رقم سے بیٹیوں کے جہیز کا سامان پائی جمع کر کے بنایا۔ حملہ آوروں نے جہیز کا سامان لوٹ کر گھر کے تمام سامان کو آگ لگا دی۔ جڑاوالا میں حملوں کا شکار مسیحی ماں غم سے نڈھال۔ ایک اور خاتون نے سوال کیا کہ ہر بار مسیحی برادری کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوتا ہے۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں میں زیادہ تعداد باہر کے لوگوں کی تھی۔ علاقے کے مسلمانوں کی جانب سے روکنے کی کوششیں بھی ناکام رہیں۔ حملوں میں ملوث مزید 17 ملزمان گرفتار، تعداد 145 ہو گئی۔ اجڑے مسیحوں کی جلے گھروں کو واپسی کا سلسلہ جاری۔ جلے گھروں اور تباہی کے مناظر دیکھ کر متاثرین رنجیدہ۔ سانحے میں 19 گرجا گھروں کو جلایا گیا، 86 مکانات توڑ پھوڑ کے بعد جلائے گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جڑاوالا آمد۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کرسچن کالونی کا دورہ کیا، متاثرین سے ملاقات کی۔ جلائے گئے مکانات اور گرجا گھروں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ڈپٹی کمشنر سے اظہار ناراضی کیا۔ کہا 3 دن گزر گئے، متاثرہ گلیاں اب تک صاف نہیں کی گئیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ڈپٹی کمشنر کو ہدایت کی کہ کرسچن کالونی کی گلیاں فوراً صاف کرائی جائیں۔ جڑاوالا میں معمولات زندگی بحال ہونا شروع۔ جلاؤ گھیراؤ کا شکار ہونے والے علاقوں میں بجلی اور گیس کی فراہمی بحال کر دی گئی۔ کاروباری مراکز بھی کھل گئے۔ جڑاوالا کے دانش اسکول میں متاثرہ فیملیز کے قیام و تعام کے انتظامات۔ دانش اسکول میں مقیم اور کرسچن کالونی میں لوٹنے والوں کے لیے پولیس کی جانب سے ناشتے کا انتظام کیا گیا۔ مسیحی آبادیوں کے باہر پولیس اور رینجرز تعینات۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا جڑاوالا کا دورہ، کہا اتوار کو جڑاوالا میں سروسز ہوں گی۔ گرجا گھروں کو مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ واپسی کا سفر شروع کر چکے ہیں۔ متاثرہ افراد پہلے سے بہتر گھروں میں واپس جائیں گے۔ رانی پور میں مبینہ تشدد سے جاں بحق ہونے والی 10 سالہ بچی کی خبر کشائی آج کی جائے گی۔ خصوصی میڈیکل بورڈ خبر کشائی کے بعد بچی کی لاش کا پوسٹ مارٹم اور میڈیکل معائنہ کرے گا۔ پولیس نے مبینہ قتل کیس کی انکوائری کے لیے رانی پور اسپتال کے ڈسپینسر کو حراست میں لے کر نامعلوم جگہ منتقل کر دیا۔ گرفتار مرکزی ملزم اسد شاہ نے دوران تفتیش بتایا تھا ڈسپینسر امتیاز فاطمہ کا گھر پر علاج کرتا رہا۔ مقدمے میں نامزد مرکزی ملزم اسد شاہ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے پاس ہے۔ بھارت کی طرف سے چھوڑے گئے سیلابی ریلوں سے دریائے راوی اور ستلج میں مختلف مقامات پر ایک بار پھر سیلابی صورتحال۔ ہیڈ سلیمان کی بہاول نگر کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ ضلع انتظامیہ نے 19 فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے۔ منگلا ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 1242 فٹ رہ گئی۔ چورنیا میں کنگن پور چوکی کے مقام پر دریائے ستلج کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ پانی دیہات میں داخل۔ دریائے راوی کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے مکینوں کی واپسی کا عمل جاری۔ متاثرین نے حکومتی امداد نہ ملنے کے باعث اپنی مددات کے تحت گھروں کی تعمیر و مرمت کا عمل شروع کر دیا۔ ملک میں ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 0.78% اضافہ۔ ادارے شماریات کے مطابق سالانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرح 27.57% ہو گئی۔ چینی، چاول، مرچ، لہسن، پیاز، زندہ مرغی، انڈے اور دالوں سمیت 32 اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ 7 اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی، 12 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔
भर में रिकॉर्ड महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। फल, सब्जियों और अशिया खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। मजदूर और दिहाड़ीदार तबका परेशान। कराची में टमाटर की कीमत 160 रुपए किलो तक पहुंच गई। आलू 110, भिंडी 180 और फूल गोभी 230 रुपए तक फरोख्त होने लगी। चीनी और आटा भी आवाम की पहुंच से बाहर। शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया का चेक एंड बैलेंस न होने पर चीजों की मनमानी कीमतें ली जा रही हैं। दुकानदार कहते हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस चीजों की कीमत बढ़ाने पर मजबूर है। साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इलेक्शन 90 दिन में या 190 दिन में हो, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। हम चाहते हैं कि इलेक्शन आइन के मुताबिक हो। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, हमें महंगाई के तासुर से मुतालिक कोई खौफ नहीं है। हमारे वोटर को पता है कि इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर पिछली हल्काबंदियों पर इलेक्शन कराया गया तो वो गैर आइनी होगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा है कि यकीन रखें इलेक्शन होंगे और वक्त पर होंगे। हल्काबंदियां जैसे ही मुकम्मल होंगी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे देगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए बहुत से वसाइल की जरूरत है। निगरान वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान के अवाम को बहुत उम्मीदें हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। एक्ट के तहत फौजी एहलकार रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात एहलकार मुलाजमत खत्म होने के 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। फौजी एहलकार मीडिया पर फौज को स्कैंडलाइज या तस्दीक भी नहीं कर सकेंगे। एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत की जाएगी। पीटीआई की सीनियर क़यादत ने चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ दिलाने के लिए गैर मुल्की सफीरों के पास पहुंच गई। शाह महमूद कुरैशी, रऊफ हसन और सेनेटर अली जफर की मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों से मुलाकात। ये मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की क़यामगाह पर चंद दिन पहले हुई, जिसमें अमरीकी सफीर, बरतानवी और कैनेडियन हाई कमिश्नर, यूरोपीय यूनियन और नॉर्वे के सफीर शरीक थे। गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमात, अटक जेल के हालात और साइफर के मामले पर बात हुई। शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकात की तरदीद कर दी, मगर सेनेटर अली जफर और रऊफ हसन की मुलाकात की तस्दीक। सेक्रेटरी इस्लाहात तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन ने नाश्ते पर बुलाया था, सिफारतकारों को पाकिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सफीरों से इलेक्शन और सियासी मामलात पर बात हुई। सियालकोट में पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की रिहाइशगाह, फैक्ट्री और सेक्रेटेरिएट सील। जिले इंतजामिया के मुताबिक जायदादों को अदालती हुक्म पर सील किया गया है। नोटिस लगा दिए गए। उस्मान डार और उनके भाई उमर डार दहशतगर्दी समेत मुतादिद मुकदमात में इश्तिहारी हैं। साहब, आप पाकिस्तान में मुस्लिम काफी उनकी क्यादत करेंगे सर? क्या फरमाया? काफी उनकी क्यादत करेंगे सर आप? इंशाल्लाह। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जुमे को भी पाकिस्तान वापसी की तारीख नहीं बताई। लंदन में जब उनसे पाकिस्तान वापसी का सवाल हुआ तो उनका जवाब था कि बताएंगे आपको। फिर सवाल हुआ कि क्या नून लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। नवाज शरीफ बोले, इंशाअल्लाह। मेरे साथ इस वक्त 35 से 40 इलेक्टेबल्स हैं और भी लोग राब्ते में हैं। मैंने कई शमूलियतें रोकी हुई हैं। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का बयान, कहा इलेक्टेबल्स के अपने वोट होते हैं। चेयरमैन पीटीआई को इंतखाबात में लपता जाएगा। फरवरी में इलेक्शन हर हालत में हो जाने चाहिए। मामला अदालतों में गया तो इंतखाबात फरवरी से भी आगे जा सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद में बैठकर पूरे मुल्क को चलाना चाहते थे। वो कहते थे कि वो फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 9 रुकनी निगरां काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर
पख्तूनख्वा गुलाम अली ने निगरां वज़रा से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ारतों के अफसरान और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। और मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। अगर हुकूमत कोई सपोर्ट करे तो मैं अपने वालिद साहब का हाथ बटा सकती हूँ और मुल्क का नाम भी रोशन कर सकती हूँ। शेर गाजी खान मैट्रिक बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली राजनपुर की अबीरा गुर्बत के बायस तालीमी सिलसिला अधूरा छोड़ने पर मजबूर। कहा, पढ़ने का बहुत शौक है मगर वालिद की इतनी आमदनी नहीं। वालिद ड्राइवर हैं, ट्यूशन के पैसे नहीं निकल सकते। बड़ी बहन ने भी FSC करके छोड़ दी। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रिक्शों और गाड़ियों के किरायों में इजाफा कर दिया गया। किरायों में इजाफे के बाद शहरियों का शदीद परेशानी का अहवाल। मुज़ाफ़ाती इलाकों से शहर आने वाले तलबा भी किरायों के इजाफे से शदीद परेशान। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। वार्ड्स और प्राइवेट कमरों में जाकर मरीजों से मुलाकातें की। मरीजों की जानिब से ऑपरेशन में ताख़ीर की शिकायत। वज़ीर आला ने अस्पताल के लिए मज़ीद सर्जन की खिदमत लेने का फैसला कर लिया। बाईपास ऑपरेशन 7 रोज और एंजियोग्राफी 4 रोज के अंदर किए जाएं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की अस्पताल इंतजामिया को हिदायत। PIC इमरजेंसी की अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दी। बुजुर्ग मरीजों ने अस्पतालों की बेहतरी के लिए वज़ीर आला मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा। कैम्ब्रिज A लेवल के तलबा की कोशिशें रंग ले आईं। कैम्ब्रिज के 10, 11 और 12 मई को मंसूख होने वाले पर्चे अक्टूबर में दोबारा लिए जाएंगे। वफाकी वजारत तालीम के मुताबिक दोबारा लिए जाने वाले पेपर्स की कोई फीस नहीं ली जाएगी। ऐसे केसेस की रीअसेसमेंट और रीएवैल्यूएशन की जाएगी जिनमें स्कूल्स और कैम्ब्रिज के दरमियान ग्रेड्स में बहुत ज्यादा फर्क मौजूद है। ऐसे केसेस स्कूलों की जानिब से कैम्ब्रिज को भेजे जाएंगे। इटली की हुकूमत की मुनफरिद सिफारतकारी। अल्बानिया के रेस्टोरेंट में खाने का बिल दिए बगैर जाने वाले इतालवी सयाहों का बिल हुकूमत ने अदा कर दिया। इतालवी हुकूमत ने अल्बानिया के रेस्टोरेंट को 80 यूरो तकरीबन 2600 पाकिस्तानी रुपए अदा किए। इतालवी वज़ीर ज़राअत का कहना है कि इस बिल की अदायगी इज्जत का सवाल था। चंद बेईमान लोग एक मुहज़्ज़ब कौम को शर्मिंदा नहीं कर सकते। अल्बानिया में इटली के सफारतखाने ने एक बयान में बिल अदा किए जाने की तस्दीक कर दी है। कनाडा में बड़े पैमाने पर जंगलात में आग भड़क उठी। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में हंगामी हालत नाफिज। जंगल की आग 24 घंटों में 6400 से बढ़कर 7800 हेक्टेयर तक पहुंच गई। जंगलात की आग से मुतासरा शिमाल मगरबी इलाकों से 22,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। कैनेडियन हुक्काम के मुताबिक कनाडा में 1000 से ज्यादा मकामात पर जंगलात में आग लगी है। बरतानवी मीडिया ने कनाडा के जंगलात में लगी आग को दिहाई की बदतरीन आग करार दे दिया। समुद्री तूफान का जनूबी कैलिफोर्निया के साहिल से टकराने का इम्कान। समुद्री तूफान हिलरी तेजी से कैटेगरी 4 में तब्दील हो रहा है। जनूबी कैलिफोर्निया में कैटेगरी 4 शिद्दत का 84 साल बाद ये पहला तूफान होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हिंदुटूटा में आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। कल टीम में पहुंचने के बाद आराम के बजाय जिम में फिजिकल ट्रेनिंग को तरजीह दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीरीज का पहला वनडे इंटरनेशनल मंगल को खेला जाएगा। यूएस मास्टर्स T10 लीग मिसबाहुल हक की क़यादत में खेलने वाली न्यूयॉर्क वॉरियर्स ने क्रिस गेल की टीम को 6 रन से हरा दिया। इफ्तिताही रोज के पहले 2 मैचेस बारिश की नजर हो गए। इवेंट में आज भी 3 मैचेस खेले जाएंगे। सितारों से सजी T10 लीग के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। मेरी दुआओं से आती है बस
अरिजीत सिंह म्यूजिक प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई पर तीसरी सबसे ज्यादा फॉलोइंग रखने वाली शख्सियत बन गए। अरिजीत सिंह ने फॉलोइंग के लिहाज से अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया। बड़ा समझाया तेनू समझ न आया कदों करदाए दिलदारियां तेरे ते गिलाए तनू पागला दिला देखनू ला लिया तू यारियां बरना दीवाना दिला घुमदा जमाना दिला हथा विच लगे यारियां तेरे ते गिलाए सानू पागला दिला वेखनू ला लिया तू यारियां बड़ा समझाया तेनू समझ ना आया का तू करदा ए दिलदारियां तेरे ते गिलाए सानू पागला दिला वेखनू ला लिया तू यारियां। बॉलीवुड अदाकारा परिणीति चोपड़ा ने एक बार फिर मद्दाहों को अपनी आवाज के सहर में जकड़ लिया। अदाकारा ने मशहूर जमाना गाना दिलदारियां गाकर खूब दाद समेटी। इससे पहले परिणीति चोपड़ा ने कोक स्टूडियो के मकबूल गाने तू झूम गुनगुनाकर भी सबको हैरान कर दिया। दुख भी अपने सुख भी अपने मैं ते बस ये जाना हाँ सब नु समझ के की करना है दिल नु है समझावा तू झूम 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 झूम। आप एक ऑल विमेन पाकिस्तान पार्टी बना दें जिसमें सिर्फ खवातीन हो और आप उसकी साइड हो। फिर आप घर में नहीं रह सकेंगे। मुझे क्यों निकाल लेंगे आप भाई? ऐसी बॉल कराने से पहले अगर मैं पूछूं पार्टी क्यों जीती तो आप ही करो। फिर इसको तोड़वाना होगा। नहीं देखिए मैडम कहीं भी आप मार सकती है पर ऐसे जोर से ना मारिए खर्चा हो जाए। अच्छा ठीक है स्टांस बहुत अच्छा है मैडम बहुत और क्रिकेटर शोएब मलिक को शोहरत की बुलंदियों पर किसने पहुंचाया? सियासत में आने का वायरस कब पैदा हुआ? मर्दों के मुआशरे का कामयाबी से कैसे मुकाबला किया? टिकटॉक कब ज्वाइन करेंगे? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान के जवाब जानिए जियो न्यूज के प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05।